जब तक हम परमेश्वर के बीच में जागते नहीं हैं और परमेश्वर के बीच में प्रार्थना नहीं करते हैं, उसका रियल पर्पस फुलफिल नहीं होता Till the time we're not awake and we don't pray, we don't get to know what's the real purpose of God behind it. तो that's why the Bible is going to teach us about कि हमें जागना कैसे है और जागते रहकर हमें प्रार्थना कैसे करनी है. That's what Bible will tell you, how to wake and how to pray when you awake. प्रभु के वचन में लिखा है जब तक हम पॉजिटिव होकर प्रभु के सामने नहीं जाते तो वो कभी भी चीज आपके जीवन में पूरी तरह क्लियर नहीं हो सकती है. God says if you don't approach God in a positive way, that thing cannot be done in your life. आज कुछ मेरे को ठीक नहीं लग रहा है तो आज मैं प्रार्थना करूंगा, शायद कोई बात नहीं बनेगी तो मैं कल करता हूं तो कल ठीक रहेगा. So we go by the feelings that today I don't feel like, so we might go and pray tomorrow. आज का जो हमारा विषय है इस about the positivity और negativity thinking के बारे में. So we're talking about the positivity and negativity thinking. I'm going to tell you today कि ये positivity और negative thinking हमारे जीवन को किस तरह harm कर रही हैं. So I'm going to talk to you about how does these both things, positivity and negativity, harm us. पॉजिटिव नेचर तब होता है किसी भी परिस्थिति में हम होते हैं हमें पता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा. So the positive nature is that whatever situation you go through, you know God will listen to you. I'm going to tell you today the positive believers and negative believers. So मैं दो तरह के believers बताऊंगा आज आपको, जो positive हैं और जो negative. परमेश्वर का वचन बताने जा रहा है कि पॉजिटिव बिलीवर कैसे होते हैं और नेगेटिव बिलीवर कैसे So होते God is हैं. going to tell you the difference between how they are, both of them. पर दोनों बिलीवर हैं, But both of them are believers. पर उनकी एक के अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स ज्यादा है, के अंदर नेगेटिविटी फीलिंग But one has more positive feelings, the other has more negative feelings. प्रभु के वचन में लिखा है जब इंसान नेगेटिव होता है The word of God says when a person is negative, उसके अंदर बुराई होती है, so he has sin in that, उसके अंदर कोई गलत फहमियां होती हैं, so he has some negative stuff in that. उसके अंदर कोई किसी चीज की परेशानी, किसी बीमारी से वो जूझ रहा है. Maybe there's a disease अगर वो नेगेटिविटी की एक हिस्सा बन चुका है, and it was a part of negativity, परमेश्वर उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की हिम्मत रखते हैं. but God is able to convert that negativity to the positivity. आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम पॉजिटिव नेचर रख के प्रभु के सामने जाते हैं, So I want to tell you, when we keep a positive attitude and go toward God, though you have a lot of negative things in your life, चाहे आपके जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, but still you approach God with a positive attitude. but आप खुदा के सामने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जा रहे एक हैं. बिल्कुल पॉजिटिव नजरिए से प्रभु के सामने जाते So you're हैं. approaching God with a positive mindset. परमेश्वर अपनी रजा को आपके जीवन में पूरा करता, आपकी नेगेटिविटी को आपके जीवन से दूर So करता God है. fulfill His purpose in your life and thus takes your negativity out of you. अगर आप नेगेटिविटी को अपने जीवन में रख के आए पर पॉजिटिव रीति से परमेश्वर को अप्रोच So करें. if you have come here with a negative attitude, approach God with a positive attitude. That's why I'm going to tell you कि कई लोग प्रार्थना करते हैं और नेगेटिव सोच रख के प्रार्थना करते So हैं. many people do pray, but they pray with negative approach. उनकी नेगेटिव अप्रोच, उनकी नेगेटिव प्रार्थना होती है कि आज पता नहीं मेरे साथ नहीं हो सकता है So ये. they think like that this thing won't happen with me. कि आज मैं अगर वापस जाऊंगी मैं उसी रीति से ही वापस जाना So if है मुझे. I'm going back home now, I'm going to go back same as the way I came. आप नेगेटिव रीति से आए जरूर हो और अप्रोच भी आप नेगेटिविटी से कर रहे हैं. So you came here with a negative with attitude and you're approaching God with negative attitude. अगर आप नेगेटिविटी से आए हैं क्योंकि आप पॉजिटिविटी से प्रभु को अप्रोच करें. So if you come with negative attitude, make sure you approach God with positive attitude. This is something that we need to understand कि जब हम प्रार्थना करते हैं हम अपने आप ही कितनी बड़ी रेसलिंग होती है हमारे दिमाग के साथ, हमारे फेथ के साथ, हमारे विश्वास के साथ और हमारी बातों के साथ हम बहुत बार रेसल करते हैं. So that's how we get to know how much we wrestle with the prayer and with the faith and everything that when we try to sit with जैसे हम God. लास्ट टाइम पढ़ रहे थे जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल स्टडी सुनने में मजा बड़ा आता है. So we were talking last week that as we read Bibles, you like to listen a lot. बात सुनने का मजा आता है और टीचिंग लेने में मजा आता So you है. like to listen a lot, you like to take more teachings. टीचिंग भी आ जाती है, You get teachings, है ना, नॉलेज भी आ जाती you है, get knowledge, पर उसको हैंडल नहीं कर पाते but हैं you जब cannot handle that. वो बंदा नेगेटिव हो जाता So है. that's a negative person. तो ये नेगेटिव अप्रोच है ये. So that's a negative When approach. you do each and everything in Christ, जब सब कुछ जब आप मसीह में होके करते you हैं, have to say yes, everything is good now. जब वो कहना सब कुछ सही है अब. आपको ये कहना कि परमेश्वर के बीच में अब मैं एक नई सृष्टि, एक नई रीति से हूँ, सब कुछ ठीक है. So I want to tell them, God, I'm new, I'm again renewed in Him, then everything is fine. परमेश्वर इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जो पॉजिटिव होकर सही रीति से मेरे को अप्रोच करते हैं, मेरे को पुकारते हैं, रूह और सच्चाई से मुझे पुकारते हैं, मैं उनकी प्रार्थना सुन के उनको उत्तर देता That's हूँ. what God says. When somebody approaches me with a positive attitude, in spirit and in truth, I answer them back. Let's see what Bible talks about the first point about the points about the positivity and negativity. पहला पॉइंट देखते हैं क्या है इन दोनों के लिए. Giving place to negative thinking only bears bad fruit. जब आप जगह देते हैं गलत विचार को, वो एक
गंदे fruits ही लाता है. एक गलत विचार, एक नेगेटिव थॉट को जब हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा कॉर्नर दे देते हैं, उसमें अच्छे फ्रूट पैदा नहीं होते हैं. So when you give a big corner to the negative thoughts in your mind, you do not give good fruits. I'm talking about पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिलीवर्स के बारे में बात कर रहा हूं. मैं पॉजिटिव नेगेटिव बिलीवर्स के बारे में भी मैं talk ये नहीं कह रहा हूं कि अगर नेगेटिव थॉट्स, आप वो नेगेटिव थॉट्स लेके आ रहे हैं कि आपने कोई गलत काम किया है और आपने कोई गलत रीति से चल रहे हैं. आई एम टेलिंग फॉर दोज पीपल, प्रभु का वचन उन लोगों के बारे में बयान कर रहे हैं जो परमेश्वर के बीच में बैप्टाइज्ड भी हैं, परमेश्वर के बीच में बपतिस्मा लेके चल रहे हैं, अभी भी नेगेटिविटी उनके दिमाग में है. So I'm specifically talking to those people who are baptized but still live in the negativity way of mindset. एक विश्वासी के जीवन में जब फ्रूट पैदा नहीं होते, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोच कर रहा है. So if you are a believer and if you trust God and you don't have good fruits, that means there is some negativity in your ये life. बहुत थिन लाइन है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जब आप विश्वास में आते हैं तो अपने जीवन से नेगेटिविटी के पहाड़ को खत्म करना बहुत So you got to जरूरी है. understand, when you come in the faith of Christ, you got to remove that negativity. आपको नेगेटिव सोच रखनी अपने जीवन में, अब कोई आपको जरूरत नहीं है उसको जगह देने की भी कोई जरूरत नहीं है. You do not have to keep that negative approach in your mind. You do not have to even give a place to it. When you are baptized in Christ, जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, आपकी नेगेटिविटी वहां पे दफन हो चुकी है. so all the negativity, what all thoughts you had has been buried. जब आप मसीह के साथ दफन होते हैं, And when you're buried with Christ, जब उसके बाद जब आप नई रीति से निकलते हैं, and when you come out of the water with a new being, परमेश्वर कहता है उस वक्त परमेश्वर का रजा, परमेश्वर का हुक्म, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का प्रॉमिस आपके जीवन के अंदर दफन हो जाता so है. whenever you come out of the water, everything which is godly comes and buries in you. And it's about you कि आपको वो नेगेटिविटी को वहां पर दफन कर देना, उसको खत्म कर देना है और परमेश्वर की पॉजिटिव बातों को, उसके उपकार को अपने जहन में दफन रखना So है. it is up to you now that you have to accept what God has, accept it, bury it in your heart, and walk what God says जैसे to walk. प्रोवर्ब कहावतों में 23 उसके साथ में ऐसे लिखा है, Proverbs 23:7. if you give a place to negative thoughts, you will become a negative person. अगर आप नेगेटिव चीजों को अपनी जिंदगी में जगह देंगे, आप नेगेटिव इंसान बन जाएंगे. For as he think in his heart, so is he. क्योंकि वचन कहता है जिस तरह से तू अपने दिल में सोचता है वही तू है. कभी-कभी हम सोचते हैं कि अपने जीवन की जौन सी हमारी रेस है, हमारी पेस है, हमारी वॉक है, यहाँ पर मुझे बहुत आगे ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे. So at times we think that the way I'm walking or in my lifespan I might get so many obstacles in the life. I'm telling you, जब हम वॉक कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि आने वाले, अब मेरे को लगता है कि यहाँ पर मुझे एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा. So as we walk, we predestined that and we thought that now we're gonna face something. अगर आपकी परेशानी छोटी सी भी होगी, पर अगर आपने पहले इसको सोच लिया है कि मुझे परेशानी का सामना करना पड़ेगा, I'm telling you, छोटी परेशानी भी आपके लिए पहाड़ जितनी So होगी. even if this problem which is coming is very small, but even if you think before that and make it so big, that will be big for you क्योंकि later आपको on. लगेगा कि ये परेशानी मेरे को पता है कि मेरे को परेशान करने वाला है. Because you know that this thing will disturb me. है ना, ये चीजें मेरे को थोड़ा सा अपसेट करने वाला है. These things might upset me later. आप उस पे ओवरकम करने की बजाय आप उसके अंदर इंग्रेव हो जाएंगे. You cannot even overcome that and you put yourself in that completely. आप उसके अंदर जाना शुरू हो जाएंगे. You start going down in that. आप जब उसके अंदर जाना शुरू हो जाओगे, आप उसके बीच में निकल सकते हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, पर आप निकल नहीं पाएंगे. And when you go in that, you want to come out of it, but you cannot come out of it. कि Then. आपने ऑलरेडी ये सोच लिया है कि मुझे आगे परेशानी का और मुश्किलों का सामना करना पड़े और मुश्किलें मेरे लिए बहुत हैं. Because you already made a solution that you are ready for that thing which you're thinking. पौलुस रसूल इसी को बयान कहता है कि जब मैं वॉक करता हूँ, Paul said, when I walk, जब मैं चलता हूँ, when I walk, जब मैं परमेश्वर की ओर देखता हूँ, when I seek God, मैं परेशानी और मुश्किलों को अपने जीवन पे हैवी नहीं होने देता हूँ. so I don't make the stuff in the life put heavy on मैं me. ये नहीं सोचता कि मेरे जीवन में आने वाली कौन सी मुश्किल आगे खड़ी है. So I don't think that what trouble is coming in my life now. मैं ये कहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में वो मुश्किल मुझसे दूर हो सकती But है. I say that in the name of Jesus, that thing can be away from me. और मुझे पता है कि कोई भी शैतान मेरे सामने खड़ा नहीं हो And सकता I है. don't know devil can stand in front of me. क्योंकि परमेश्वर के बीच में उसने पॉजिटिविटी की बातें परमेश्वर की अपने जीवन में उसने दफन की हुई है. Because everything which is godly, he has buried in him. और प्रभु के वचन में लिखा है जब वो मुश्किलों को फेस करता है, That the word of God says, when he faced the troubles, बड़ी मुश्किलों को फेस करता है, he faced so much troubles. जैसे डेविड ने गोलियत को फेस किया था, As David faced Goliath, तब उसके आगे बहुत बड़ा पहाड़ था. he was like a mountain in तो front of उसके him. अंदर बहुत सारी उसको ये पता था कि ये मैं इसको डिफीट नहीं कर सकता हूँ. He know that he couldn't defeat him. पर डेविड ने फिर भी कहा क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर
परमेश्वर मेरे साथ है, But David said instead that my God is with me. मुझे ये पता कि मेरा परमेश्वर मुझे इसमें जीत और मुझे इसमें विक्ट्री जरूर And he मिलेगी। was so sure that that my God will give me victory on जितने this. साथ के लोग खड़े थे वो कह रहे थे कि इसको हराना मुश्किल है। And so many people in their colleagues were saying that it was very hard है ना, to वो make him डेविड fall कह रहा down. कि चाहे मैं छोटा हूं पर मैं इसे हरा सकता हूं। But David said, though I'm small, but I still can fight him. Because I trust in my Lord. क्योंकि मैं अपने खुदा पे भरोसा रखता क्योंकि हूँ. परमेश्वर मेरे साथ है। Because God is with me. क्योंकि अगर वो कहता कि यार ये तो जायंट है, जायंट को मैं हरा नहीं सकता हूं, मेरा पीछे रहना ठीक है। Because they was thinking he's a giant, I cannot face him, I have to be in the back. Doesn't matter को कहता मेरी हाइट छोटी है, चाहे मैं बच्चा हूं, चाहे मेरी कोई भी उम्र है, पर परमेश्वर का आत्मा मेरे बीच में है। He said it doesn't matter, कुछ नहीं होता, चाहे मैं कुछ भी हूँ, मैं चाहे छोटा हूँ या whatever it is, but my God's spirit is in I'm me. telling you church, no matter what kind of situation that you are facing in your life, जब आप परमेश्वर में कहते हैं कि God you are with me, वो problems और परेशानी आपसे दूर हो जाएगी। मैं नहीं जानता खुदा में किसमें है, but when you say God कि तू मेरे साथ है, the troubles will leave you. Your thoughts, ये आपकी सोच, आपके विचार, आपकी एक पर्सनालिटी को जन्म देते हैं। So all the thoughts give a new birth to the new personality that you have. When you walk in this world, you have to say, God, you are with me, and I can conquer it, and I can establish a new thing in your mighty and precious तो name. कहते खुदा मैं इस जिंदगी में जब चलता हूँ, I know I can conquer things with what you have for me. हाँ ना कि मैं इस चीजों को अपने जीवन में हासिल कर सकता हूँ और शैतान को शर्मिंदा कर And सकता I can हूँ। have these things in my life and make devil insult. पहला पॉइंट है अपने जीवन में हमेशा ये सोच के चलें कि ये मुश्किलें मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती So हैं। whenever trouble comes, always face it with an attitude that these things cannot harm me at all. ये परेशानी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती These हैं। troubles cannot harm me at all. जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि प्रभु जी ये चीजें मुझसे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं, तब तक आपके जीवन को कभी भी विक्ट्री नहीं मिल सकती, क्योंकि विक्ट्री का मिलना ही आपकी सोच में है। Because till the time you don't say these things from your mouth, you cannot have victory, because victory starts from the thoughts, the way you think first. Proverbs 15 और 3 में कहा होता, 15:3 में ऐसे लिखा है, Proverbs 15:13. sad and negative thought weaken our spirits। जो sad और negative thoughts होते हैं वो हमारी आत्मा को कमजोर कर देते है हैं. ना, मुंह उतरा होता कहीं का, So many people are so sad. है ना, मुंह बिल्कुल नीचे आया होता They're कहीं का, completely sad है ना, कहीं कहते ले अभी आज तो काम खराब होया हुआ है, that today nothing. है ना, शक्ल से पता लग जाता है कि बंदा आज कितना खुश है कितना नहीं है। And when you see the face, you get to know that how the person is happy or है ना, not. किसी को बोला पे चेक नहीं मिला, उनको शक्ल देखने वाली होती है। So if I say, do you get the paycheck? आओ, You should look at the faces. आज सैलरी नहीं मिली है That आज, they didn't get the salary. है ना, आज हुन की होएगा जी। Now what will happen? हुन पास्टर ने कहना कि फास्टिंग रख लो, अब अच्छी बात है, Then he said, keep fasting now. है ना, तो वो करे कि अब फास्टिंग नहीं रखनी, हमें आज पे चेक नहीं मिला। There's no fasting. We didn't get the paycheck. I'm telling you, these are small thing। कभी जब हमारा मुंह ढीला होता है, उदासी और मायूसी हमारे जीवन में आती है, So when we are sad and these things comes into our life, नेगेटिव थॉट वीकन आवर स्पिरिट, वो हमारी आत्मा को कमजोर कर देती है. हमारी अंदर की आत्मा को एक बहुत रीति से कमजोर कर देता है, निर्बल कर देता है, और उस चीज को लेट डाउन करना शुरू कर देता है, That sadden our spirit and put you under, they let you down then. एंड लीड टू डिस्करेजमेंट। वो आपको डिस्करेज कर देती है फिर. बाय सॉरो ऑफ द हार्ट द स्पिरिट इज ब्रोकन, पर वो दुख, जो दिल का दुख है, आपकी जो आत्मा है वो टूट जाती है. बट सॉरो ऑफ योर हार्ट द स्पिरिट इज ब्रोकन। जो आपकी आत्मा के अंदर जो दर्द है आपके दिल में, उसके कारण आपकी आत्मा टूट जाती है. हाँ जी, कौन सा दर्द है आपके दिल में? Now what kind of pain you have in your heart? है ना, वो ना टीवी लगा के लोग बड़े सैड सॉन्ग सुनते हैं, So I've seen many people watch TV with sad songs. है ना, वो खुश, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको They don't have any वो problem. गाने सुन के रोते शुरू कर But देते when they हैं, hear song, they cry. है ना, गाने सुन के यार उसके गाने में दर्द बहुत है, Yeah, and they say that his song has so much pain. है ना, उसकी बातों में दर्द बहुत है, That his words have so much pain. है ना, वो अपने आप को दुखी करते हैं जानबूझ के, That they try to do make them sad by themselves. है ना, कई ऐसी मूवी देखते हैं, इमोशनल मूवीज ज्यादा And देखेंगे, many people see so many emotional movies. है ना, जो वो 3 घंटे की मूवी देख के निकलेगा, सारा दिन उनका ऐसे ही बना रहेगा, फिर They watch the 3 hours movie and whole days यार, like that. जबरदस्त एक्टिंग की है बंदे That ने, he worked so good. जबरदस्त डायरेक्टर है जी He वो। was amazing director. वो डायरेक्टर तो जबरदस्त है, वो अपने घर में खुशी से बैठा हुआ है, And the director who is good, और he's like डायरेक्टर जिसने enjoying. मूवी बनाई, जिसने देखी है, वो अपने आप को पूरा दिन मायूस करके बैठा And हुआ the है। people who saw that, they are just sad all पादरी day. साहब कह रहे हैं आज चर्च आ जाए, क्योंकि आज फिल्म देख ली है, थोड़ा सा मायूस हूं मैं, The pastor said, come to church, let me see movie, I'm kind of tired है now. ना, that's why they say that by the sorrow of the heart the spirit is broken।
जब आपका दिल दुख होता है, दिल में दर्द होता है, तो आपकी आत्मा I have seen ऐसे में मैंने कई लोग देखे कि बहुत परेशान होते तो सैड सॉन्ग ज्यादा सुनते हैं वो। I've seen many people who are so sad and then they start hearing और sad songs. जितना वो दुख होता है उनको और दुखी ज्यादा हो जाते हैं वो। So the more trouble they are, they get more trouble than है ना, वो कहते हैं hearing कि और after दुख that. का पार्ट उनके जीवन में आ जाता They है, have more sadness उसे वो ओवरकम नहीं कर पाते because हैं। they don't overcome हम it. लोग ये शैतान के बहुत बड़े हथियार हैं, And that's the weapon of the उसने ये enemy. वर्ल्ड में छोड़े हुए हैं। And that's he has put it in अगर the भैया world. तेरा दिल टूटा है तो सैड सॉन्ग सुनो जो। Because if you're hurt, go and hear हाँ sad जी, songs. गजलें गुजलें सुनो जाके Go जरा, and hear ghazals. है ना, and लोग everything. यहाँ से बैठ के सुनते हैं उस चीज को। And then people hear it. प्रभु के वचन में लिखा है when you are sorrow, वचन कहता है जब आप दुख होते हैं, आप दुखी होते हैं, उदासी मायूसी में हैं, when you are sorrow or आपकी sad, अंदर की आत्मा प्रभु के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं so कर you सकती है। cannot connect to God. I'm telling you, when you are not connecting to God, और जब आप खुदा के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, someone else is going to connect in with your life today. तो आपकी जिंदगी में कोई और कनेक्ट हो जाएगा. वो जो कनेक्ट आपकी जिंदगी में होगा, And if somebody else connect in your life, आपकी जिंदगी में कभी पॉजिटिव नेचर नहीं कभी आ सकता so है। you cannot have a positive nature वो then. आपको उस तरह जख्मी करता है, And that person hurts you so वो bad, उस तरह आपको गुलाम बना लेता है that makes you so much into कि slavery, आप परमेश्वर की खुशी को कभी महसूस नहीं कर so that पाएंगे। you cannot enjoy what God has for you. परमेश्वर की आराधना आपसे होगी नहीं। You cannot worship God. उसमें आप कहेंगे कि मैं अभी तक रेडी भी नहीं हूँ। That I'm still not ready yet. अब उस वक्त आप कहेंगे कि प्रभु जी अभी तक मेरे जीवन में अभी वो मायूसी का पार्ट चल रहा है। Till the time that sadness is moving in my life. Let each and everything जो आपके जीवन के साथ होता है, प्रभु के साथ अपनी खुशी के कनेक्शन को हमेशा बयान करा करें। Just whatever you face in life, make sure that you always have your relationship, a joyous relationship with God. So don't allow the sad and negative things come to your life. तो आप अलाउ मत करें इन चीजों को अपनी जिंदगी में आने के लिए. कभी-कभी थोड़ा सा दुख होता है तो कहें कि प्रभु यीशु तू मेरे साथ है, मुझे गम और मायूस होने की जरूरत नहीं है। And if you feel that, tell to God, God, you are with me. I don't have to feel like that. रोमन्स उसकी 8, 6 और 7 में ऐसा लिखा है, रोमियो 8, 6 and 7. नेगेटिव थिंकिंग इज नॉट वॉकिंग इन न्यूनेस ऑफ लाइफ, नेगेटिव थिंकिंग जो है एक तरह की वॉक नहीं है जो आपको नई जिंदगी दे, but in the old carnal nature which is against God. लेकिन ये उसी तरह से आपकी पुरानी आदत है, आपकी पुरानी वॉक है जो खुदा के अगेंस्ट है. कार्नल नेचर वो होती है जो ईगो होती है। Carnal nature is a nature which has an ego. कहते हैं वो वाली नेचर है जो आपने ईगो रखी हुई है अपने जीवन So में, you still have that ego, you have that nature. वो परमेश्वर के खिलाफ है। That is against God. When you are in Christ, जब आप खुदा में होते हैं, तो वो आप परमेश्वर को कहे प्रभु वो ईगो मेरे जीवन से खत्म है। tell God, let that ego be away from my है ना, life. वे क्या हमारे ये होता है ना कि मेरा रुतबा, मेरी शौहरत, मेरा नाम, मेरा शौहरत मेरे नीचे ना हो ना जाए, वो अपने ईगो को बरकरार रखते हैं वो So लोग। they have the ego so that their name and the fame do not go down. They are baptized in Christ, वो खुदा में बपतिस्मा ले चुके हैं, पर कार्नल नेचर जौन सी है, ईगो वाली पार्ट है, वो अभी भी बयान है, उतना but ही है। still that ego nature is on the top. I'm telling you, still you are a negative personality. क्योंकि आप फिर भी negative personality हैं. तभी अभी भी आप नेगेटिव पर्सनालिटी, अगर अभी तक भी आपने अपने ईगो को छोड़ा नहीं है तो। If you have not let your ego go off, you are still a negative person. For to be carnally minded is death. For carnal mind का मतलब है मौत. जो इतनी ईगो में रहता है उसके जीवन में आने वाला टाइम में उसका एंड लिखा है, उसके जीवन में कभी खुशी नहीं आ सकती, उसके जीवन में कोई आस नहीं हो सकती, वो न्यूनेस को कभी भी महसूस नहीं कर So if सकता। you have still that have ego, is the result is the death. You cannot enjoy God's newness. You will always be sad. स्टबर्न नेचर परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। God doesn't like stubborn people. कहते हैं आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। God says that you have to make yourself In flexible. front of God you have to say God I'm open to you. खुदा को आपने बोले खुदा मैं तेरे सामने खुला हूँ. As you gonna tell me something I'm gonna be as the same person as you told me. जिस तरह से उन्होंने बताया मैं उस तरह से बताऊंगा. मैं उसी रीति से अपने जीवन को पोर्ट्रेट करना शुरू कर दूंगा। I will try to portray my life like that. उसी रीति से मैं लोगों से बातचीत करना शुरू कर Same, दूंगा। I'm going to talk to people like that. ये ना सोचे कि मैं इस रीति से चलता होता था। Don't think that you used to walk with like that. वो नेचर को, कार्नल नेचर को अपने जीवन से खत्म कर So you देना। got to take that carnal nature out of your life. That's why Bible say, but to be spiritual minded is life and peace. But spiritual minded जो होता है इंसान वो उसके पास जिंदगी और पीस होता है. Spiritual minded वो इंसान है प्रभु में भी आके बोलेगा I'm happy. Spiritual person is a person who is in all these situations he says I'm happy. और वो कोई भी परिस्थिति बोलेगा God I'm still have that much strength in me because you are with me. वो तभी बोलेगा खुदा मेरे में उतनी ताकत है क्योंकि तू मेरे साथ है. कोई आपको बोल दे मैंने तेरे को छोड़ना है, तेरे को मारना है, कोई हमारा रिश्तेदार छोड़ देता है, कोई हमें धमकी देता है, you have to say God you are with me. I am a new personality one more time. No matter who leaves you, who asks you, you got to tell to God I am a new personality in Christ. Don't be stubborn over there कि stick to that thing कि यार मेरे जीवन के साथ ऐसा क्यों
हुआ है? आपको उस जगह पे रहना नहीं है कि why this thing happened to me in my life. You have to say, God, you are with me. I'm a new creation. If something happened to me, I can get a new personality in my life because your name abides in my life. So you don't have to be afraid that God, that you are with me. I'm a new personality in you. What has happened has happened. I'm a new personality in you. धार्मिक इंसान की जो सी सोच है एक शांति और प्यार उपकार को एक नया जन्म देती है. So righteous person's life is a life of life and peace. Because the carnal mind is the enmity against God. carnal mind जो है वो खुदा के against है. For it is not subject to the law of God. क्योंकि वो खुदा के अंडर नहीं है. Neither indeed can be. और वो कभी हो भी नहीं सकता. वो कभी भी हो नहीं सकता है. It cannot be done. If you are in Christ today, अगर आप यीशु मसीह में हैं, आप परमेश्वर में चल रहे हैं, and you're walking with God, कहीं भी नेगेटिविटी की आपकी बातें आपके जहन में आती हैं, and if you have thoughts of negativity, उस रीति से प्रभु को अप्रोच ना करें. Never approach God with those उस things. नेगेटिविटी को ये ना कहा करें प्रार्थना में, प्रभु जी मेरे साथ क्यों हुआ है? That you don't approach to God like that. That God. And you should not say to the God, प्रभु जी मेरे जीवन को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी क्यों पड़ी है? Why my life has to face so much trouble? बलवा हमें नहीं करना है. You don't have to cry for that. है ना, आपको स्टबर्न नहीं होना है, आपको रिवोल्ट नहीं करना है प्रभु के साथ. You don't have to revolt God. है ना, आपको बलवा नहीं करना है प्रभु के साथ. You don't have to revolt with God. परमेश्वर के वचन में लिखा है आपको पॉजिटिव माइंडेड होकर कहना कि प्रभु जी if something happened God I ask my forgiveness in your mighty and precious name today. So you have to ask God, if I did something wrong, I ask for the forgiveness, God. Second point, let's say we need to ask the Lord to wash our hearts and renew our mind to think only His positive good thoughts. So हमें खुदा से मांगना है कि हमारे को धो डाले और हमारे दिलों को, हमारे मन को, कि हम एक पॉजिटिव थॉट सोच सके. जब आप वर्ड पढ़ते हैं ना, so when you read the word, जब आप वर्ड पढ़ते हैं ये आपको क्लीन करता है. The word cleans you actually. आपको पता है जब क्लीन करते हैं, जब कपड़े को हम धोते हैं, so when you wash the clothes, मशीन सिर्फ उसे धो के रखती है. so the machine soaks it, ड्राई भी वो कर देती है, and then it dries it. आपको उसको प्रेस करके इस्त्री करके कबर्ड में आपको खुद ही रखना पड़ता है. But then you have to iron it and you put it in the cupboard. ऐसी कोई चीज नहीं कि वो अपने आप ही कबर्ड में चल जाए. It doesn't like work like that. It That's goes why the Bible automatically. says बाइबल के वचन आपको क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं. That's what the word of God says, that cleans you, it washes you. उसे पोर्ट्रेट करवाने के लिए, उसे पॉजिटिव रीति से रखने के लिए, और वो आपके हाथ में है उसको अपने जीवन में किस रीति से रखना है. But how to portray it and how to have this in your life is in your hands. That's why it says कि like you have to say to God, God clean me and wash me. That's why खुदा कहना, खुदा मुझे धोए और मुझे अच्छी तरह से. When you read this word says, God said, I'm always with you. Don't fear about anything. मैं तुझे बचा के रखूंगा. आपके जीवन को वो वॉश कर दिया उसने. So that's what God says. I'm always with you. I'll wash your life. And you have to hold that word in your life. अब आपको उस वचन को अपने पास रखना है. Positively कहें. And say, confess it positively. मैं क्लीन हो चुका हूँ. That I'm already clean. मैं वॉश हो चुका हूँ. I'm already washed. और प्रभु जी मुझे पता है तूने कहा मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है अभी भी. God, you're with me and you are with me and I'm with you. आज मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ, जिस रीति से भी जा रहा हूँ, जिसको भी मिलने जा रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु मुझे एक विक्ट्री मिलेगी जरूर. So wherever I'm going, in what way I'm going, I know I'll get the victory. And no matter what, कोई भी मेरी चीज सामने कोई परिस्थिति कोई मुश्किल भी आएगी, प्रभु जी मुझे विक्ट्री जरूर मिलेगी. परमेश्वर तूने मुझे क्लीन और वॉश कर दिया है. Whatever thing I face, I know I will get victory because you have washed me, God. ज़बूर 51 उसकी 2 से लेके 10 में ऐसा लिखा है. First Psalm 51 2-7-8. Wash me thoroughly from my iniquity. मुझे अच्छी तरह से धो दे मेरे पापों से. And cleanse me from my sin. और मेरे अच्छी तरह से पाप धो दे. Purge me with highest. मुझे पाक पवित्र कर उस पाक पवित्र जरिए से. So just clean me with that. उस सोते से मुझे पाक पवित्र कर. Clean me. I shall be clean. Wash me. और मैं क्लियर कर मुझे धो दे. And I shall be whiter than snow. और मैं एक स्नो से भी ज़्यादा white हो जाऊंगा. ना स्नो की माने उससे भी माने मैं सफेद हो सकूं आज. So that I can be more whiter than snow. This is a positive approach when you come close to God. ये positive approach है प्रभु के सामने जब आप approach करते हैं प्रभु को. So this is the positive approach when you come to the God. That when you say God clean me one more time. That God clean me, मुझे दोबारा से धो डाले. When you say God I cannot be able, I won't be able to clean myself again. So you say God I cannot be able to clean myself again. हाँ ना, मैं अपने आप को clean नहीं कर सकता हूँ दोबारा. I cannot clean myself again and हाँ again. ना, आप बाहर से अपने आप को clean कर सकते हैं, spiritually आप अंदर से अपने आप को clean नहीं कर सकते हैं. So you can clean yourself outside, but spiritually you cannot. That's what Bible say when you say those things. कुछ वचन कहता है जब आप ऐसी बातें करते हैं. दाऊद इस चीज को बयान करता है कि जब आप बोलते हैं आपके बोलने में भी इतना असर है. वो वचन देहधारी होता है. जब वचन देहधारी होता है आपके सामने वो रूबरू हो जाता है. So David said your word has so much power that when you say it you will see it.
If you have get some problem in your body or pain कहीं पर भी हो, आपकी बॉडी में अगर कोई पेन है, वहां पे हाथ रख के बोले, I rebuke in the name of Jesus so put Christ. your hand there and just keep on rebuking that pain. आपके मन बेचैन करता है, अपने दिल पे हाथ रख के बोले, I rebuke in the name of If your Jesus heart is Christ. troubled, put your hand on the heart and say in the name of Jesus. be आपका rebuked. माइंड आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, हाँ यहाँ पे हाथ रख के बोले, I rebuke in the name of And if your Jesus mind Christ. tries to manipulate, to rebuke it. आपको अगर कोई सोच कोई भी आपको कुछ भी तंग करने की कोशिश करती है, you have to rebuke in the name of Jesus Any Christ. thoughts which try to disturb you, you got to rebuke it. He will clean you and he will wash you. आपको clean करेगा और आपको wash करेगा. And God says, create in me a clean heart, और वचन कहता है कि मेरे अंदर एक नया दिल डाल God, and renew a right spirit within और मेरे me. अंदर एक नई स्पिरिट डाल Renew a right spirit और within रिन्यू me. कर एक मेरे अंदर जो आत्मा है दोबारा से. उस चीज को दोबारा रिन्यू करके एक राइट स्पिरिट मेरे अंदर दे दे. So renew it and put a right spirit in me. वो वाली स्पिरिट से नहीं जो मैं अपने सोच और वर्ल्ड की सोच से चलता रहा हूँ. Not that spirit which makes me walk in the I'm world. telling you, आप जिस नेगेटिविटी को आप वर्ल्ड के सामने रखेंगे, No matter how, if you put the negative in the front of the world, वर्ल्ड विल से यस ये ऐसा ही है, ऐसा ही हो सकता the है. world will say very good, that's why you do it. वर्ल्ड की जो सी नेगेटिविटी है, प्रभु कहते हैं कि मैं उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूँ. So the world's negativity says I can convert the negativity to the positivity. और जो वर्ल्ड के सामने जो पॉजिटिविटी है, प्रभु की निगाह के सामने वो नेगेटिव है. And the things which are positive in the world is actually negative in the God's eye. That's therefore I'm telling you, जब लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव अप्रोच है, So that's why God says this is the positive approach. प्रभु अपने लोगों को कहते हैं don't do that, ये पॉजिटिव अप्रोच नहीं है. But God says don't do it. This is not the positive approach. That's why God says कि you have to ask from God and He will renew it, renew इसमें your खुदा कहता है spirit. कि आपको खुदा से मांगना पड़ेगा और वो आपकी स्पिरिट रिन्यू करेगा. आपको जब रिन्यू हो जाती है स्पिरिट, And when the spirit is renewed, आपको वो सही जगह पे लेके जाती है. and when the spirit takes you to the right राइट place, से, लेफ्ट से, फ्रंट से, बैक से शैतान अपने वेपन लेके आपको पर्स करने की कोशिश करता है. so when you try to do it, devil tries to curse you. है ना, वो आपको पर्स करने की कोशिश करता है, आपको जख्मी करने की कोशिश करता And है. he tries to kill you or disturb you. I'm telling you, when you say I rebuke in the name of Jesus Christ, जब आप कहते हैं in the name of Jesus I rebuke you, जब आप बोलेंगे शैतान तू मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, devil you cannot do any harm to me now. अगर तू मेरे दिमाग में ये सोच भी डाल रहा है, फिर भी तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता Even if you है, try to put this thought in my mind, you still cannot do क्योंकि anything. मेरा विश्वास मेरा जिंदा परमेश्वर पे है Because my faith is in my living God. और मेरा परमेश्वर मुझे बचाने की हिम्मत रखता है. My God is able to save और me. मैं इस रीति से कभी भी अपने आप को डिप्रेस नहीं करूंगा. I will not make myself depressed in मैं इस any way. रीति से कभी भी अपने आप को लो डाउन नहीं करूंगा. I won't put myself low तो इस anyway. रीति से मैं अपनी स्पिरिट को कभी भी प्रभु तेरे से दूर नहीं करूंगा. In that way I cannot take my शैतान spirit away चाहता from है you. कि वो आपको उदास कर सके, आपको बर्बाद कर सके, Devil wants you to make you upset, आपको sad, and to destroy you, आपको मायूस कर सके. to make you upset. When आपको अंदर जब सौरो पैदा होना शुरू होता है तो रिब्यूक करें यीशु So के when नाम you have में. sorrow in your heart, try to rebuke उसी it. वक्त अपने मुंह पे स्माइल लेके आके कि And- यीशु मसीह के नाम में आई एम ए न्यू क्रिएशन. And put a smile in your face and in the name of Jesus I'm a new creation. शैतान भाग जाएगा. You will see devil will flee वो away. उसको बोलेगा यहाँ पर मेरा कोई वश नहीं है. You will see, he will say that he has no right over and he will flee. वो भाग जाएगा, वो आपके पीछे दोबारा नहीं आएगा. He will flee and God is victorious. डोंट ट्राई कि सौरो आए तो सैड सॉन्ग सुनने शुरू कर दे. So don't try this कि आप sorrow आए then you start listening to sad वर्ल्ड के songs. पास ये बहुत अच्छा फंडा है, World has that much good thing, है ना. ये प्रभु के पास ये वाला फंडा नहीं है. but that is not with God. प्रभु के वचन में लिखा है अगर आप उदास है तो प्रार्थना करें, The word of God says if you're upset, pray, अगर खुश हैं तो प्रभु की आराधना करें. and if you're happy, then worship God. That's why the Bible says in Romans 12:2 में ऐसा लिखा है, Romans 12:32. and be not conformed to this world, लेकिन उस दुनिया के साथ नहीं, but ye be transformed by the renewing of your but mind, ट्रांसफर होने अपने दिमाग को बदल के, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of और God. जो बता सकें जो यही एक्सेप्टेबल और परफेक्ट विल है खुदा की. No, and be not conformed to this world. You do, आप दुनिया के साथ जकड़े मत रहें. इस दुनिया की रीति के according to नहीं, You don't have to walk with according to the but world. according to the real purpose that God wants to be get fulfilled in your life. पर उस पर्पस के साथ चलना है जो खुदा ने आपके लिए रखा है. अब जब आप इस चर्च में आके आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप आराधना कर रहे हैं, And when you worshiping God and when you come to the आप ये church, वर्ड को सुन रहे हैं, you're listening to the word. I'm telling you प्रभु के दूत यहाँ पर मौजूद हैं. The angels are there right वो now, आपको एक नए हौसले में तब्दील कर रहे हैं. and they are changing into new strength. वो कह रहे बेटा सुन, तू घबरा मत, He says, मैं तेरे don't साथ worry, हूँ. I am with thee.
जब जैसे आप चर्च से बाहर निकलेंगे, as you move out of the church, वर्ल्ड के बीच में पैर रखेंगे आप, and as you try to put your feet in the world, शैतान बोलेगा बकवास है सब कुछ, and devil will say everything is all fake and ये stupid. तो कुछ भी नहीं है, फेकनेस है ये सारी, It's all fakeness. चल तू मेरे साथ चल, तेरे को मैं अच्छी जगह लेके जाता हूँ, Walk with me, I'll take you somewhere देखो good. मैं अच्छे लोगों से मिलवाता Let हूँ, me take you and make है you ना, walk देखो with अच्छी good अच्छी people. फिल्में दिखाता हूँ मैं Let me तेरे show को, you good movies. मैं देखो अच्छी अच्छी बातों के पास लेके जाता Let हूँ. me take you to good things. बाइबल के वचन में लिखा है कि जब आपके साथ कोई भी ना हो, ये बात कहें कि प्रभु जी मेरे को सिर्फ तेरे साथ की जरूरत है. The word of God says when you have nobody, tell to God that God, I just वर्ल्ड need your कहती है कि face. मेरे पास अच्छा ग्रुप है. World says I have a good group. एक बार याद रखिए वो ग्रुप में भी बहुत सारी लूप होल्स हैं. But in that group you'll be a lot of so many जितने ज्यादा loopholes. लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, So no matter how many people are added to उतने ही you, आप अकेले हैं. एक बार याद रखें. so the more loner you are, always remember this. याद रखिए जितने आप अकेले रहेंगे, And the more alone you are, आपको लगता है कोई मेरे साथ बातचीत नहीं कर रहा है, and you think that nobody is you talking need to to be me, happy कि गलत लोग मेरे साथ नहीं हैं. but आपको खुश होना that you don't have wrong people प्रभु with तेरी you. मर्जी पूरी हो रही है. But God, your will is being और accepted. प्रभु के here. वचन में लिखा है I will put you into the high top mountain. और वचन कहते हैं कि मैं तुझे उस पहाड़ पे वो बिठाऊंगा. लोग नीचे से तुझे देखेंगे, And they will look वो from बोलेंगे down to मुझे up. भी वहां पर जाना है. Say, I'm gonna go up. आप उनके लिए एग्जाम्पल बन रहे And हैं. you are being तभी an आप आज example to अकेले them. हैं. That's what is. बाइबल इस चीज को because you are getting the positive nature in Christ now. क्योंकि आपको एक पॉजिटिव नेचर मिल रही है क्राइस्ट में. That's why प्रभु के रोमियो के खत में कह रहा है कि वर्ल्ड के साथ नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के साथ चलना जरूरी आपको है. द वर्ल्ड के साथ नहीं, but you have to walk with God. Third point say ask the Lord to help you learn to recognize the enemy is negative thoughts so you can resist them. तो खुदा से मांगे वो आपको बताए कि किस तरह से एनिमी के जो थॉट्स आते हैं, you can recognize them, और उससे निकल सकते हैं आप. दुश्मन कौन है हमारा? Now who is the enemy? हाँ जी, जब हम कहते हैं दुश्मन कौन है, आसपास ना देखें जरा, And who is the enemy? है ना, देखें आई बैठी है, यही लगती है मैनू, This is है the ना. one. कोई अपनी घरवाली ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि दूजे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ है. So people talk to their wives. मैं किसी के प्रेयर कर रहा था, एक बंदा अपनी वाइफ के लिए प्रेयर करा रहा है मुझे. As I was praying for somebody is told me. उन्होंने नहीं समझ लगती किसी भी चीज दी, उनके लिए प्रेयर करो भाई साहब. You don't understand anything, so pray for her, please. है ना, वो थोड़ी मोटे दिमाग दी है. And she's kind of a. है ना, ऐसी प्रार्थना ना किया करें. So don't pray like that. ये कह के God, thank you that you have given a wonderful life partner in my life. खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने एक अच्छा लाइफ पार्टनर दिया. ऐसा बोला करे प्रभु उसको और निखारेंगे. So try to talk like God will. कर्ज ना किया करे, कर्ज करेंगे और बिगड़ जाएगा वो. So when you curse, it'll be more bad. बाइबल कहती है उसको ब्लेस करें. But whatever God says, आपके मुंह से जो बात लेके दूसरे को ब्लेस कर सके. God bless him. comes out of your mouth should bless somebody. Thank you for the wonderful family that you have given to me. आपको मैं धन्यवाद देता हूँ इस फैमिली के लिए जो आपने दिया है. Thank you for the मुझे. wonderful spouse that you've given to me. मैं धन्यवाद देता हूँ उस पत्नी के लिए जो आपने दिया है. Thank मुझे. you the wonderful relationship that you've given to me. मैं धन्यवाद देता हूँ उस रिलेशन के लिए जो आपने That's why दिया है. Bible says कि negative जो thought enemy वहां पर आपके enemy आपको वहां पर ऐसी negative thought डालता है, अपने आपके लोगों आपस के लोगों को वो दुश्मन बना देता है. So enemy put such thoughts in the family that even the family members start to fight with each आपको other. अपने भाई बहन अच्छे नहीं लगेंगे. And you won't like your brother आपको अपने sister. माँ बाप अच्छे नहीं लगेंगे. You won't like your parents. आपको अपने हस्बैंड अच्छा नहीं लगेगा. You won't like your husband. आपको अपनी वाइफ अच्छी नहीं लगेगी. You won't like your wife. आप कहेंगे मैं इससे अच्छा मैं कुंवारा ही रहता तो अच्छा था. This is I was It's happy. not when I a was married. solution. वो solution नहीं है. वर्ल्ड के पास सोल्यूशन है शादी ना करो बचे रहोगे. The world has a solution that if you don't marry, Bible you'll be कहते हैं, safe. if you are single, if you become double, your blessing become double. The word of God says if you're single and when you become double, your blessings will remain double. बाइबल कहती है कि उस चीज में थैंक्स करके प्रभु जी मैं तेरे नाम में एक नई रीति से अपने साथ वाले को ब्लेस करता हूँ. So the word of God says that in the new way I'm going to bless somebody else. That's why the Bible कहते हैं कि वो enemy आपको ऐसा आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट डालेगा, आपको अपने लोग दुश्मन लगने शुरू हो So जाएंगे. he'll put such negative thoughts in the family that your own people you'll feel like them an इंजील enemy. 7:16 उसके 20 में ऐसा लिखा है. In Matthew 7, What kind of fruit do these thoughts bear? कि ये किस तरह के फल लाते हैं, इस तरह के विचार. You shall know them by their fruits. आपको उन लोगों का पता चलेगा उनके फलों के द्वारा. बड़े ध्यान से गौर से देखना जरा. Even so every good tree bring forth good fruit, हर एक पेड़ जो है एक अच्छा फ्रूट लेके आता but है. a corrupt tree bring forth evil fruit. बट एक जो करप्ट पेड़ होता है वो एक गंदा फ्रूट लेके आता जो है. ये दुनिया से करप्ट हो जाता है. So when people are being corrupted in the world, दुनिया के लोग बोल देंगे यार वो बंदा गलत है, तेरा वाला तेरा भरा ही गलत है, तेरी बहन ही गलत है, तेरा पति गलत है, तेरी वाइफ ही गलत है. and the world say that all of these people are wrong. है ना, हम करप्ट हो जाएंगे उस वक्त. So you get corrupt then. You should not be corrupted by the world. आपको वर्ल्ड से करप्ट नहीं होना. आपको वर्ल्ड बोलेंगे यार ये बहुत गलत काम करता है भाई. That he do so many bad things. आपको अपने माइंड को करप्ट नहीं करवाना So है. you have to make your mind corrupt. अगर आपका माइंड करप्ट हो गया उस वक्त, So if your mind get corrupt, अगर उस
बार आपको नेगेटिव थॉट्स आपके बीच में आ and गई, if you have a negative thoughts in between, being a believer, being a believer, तो उस वजह से फ्रूट आपके अंदर जितने भी पैदा हो रहे हैं, so what all fruits which are actually growing in you, वो नेगेटिव फ्रूट्स बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, then you will see the negative flow of the fruits, और उस फ्रूट में कोई मिठास नहीं होएगी फिर. and there will be no sweetness in the जब आप fruits. बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि उसको बहुत बड़ी चोट आप दे रहे हैं. So when you speak, you'll feel like that you're giving such a big problem to that person. Make sure if someone says something against about your family, और आपके फैमिली के अगेंस्ट कोई कुछ कहता है, आपके बच्चों के बारे में कुछ कहे हैं, somebody talk against आपके about your हस्बैंड children, के बारे में कुछ कहे against your हैं, husband, आपकी वाइफ के बारे में कुछ कहे against your हैं, wife, you have to say I will pray for them. आपको उसके लिए दुआ करनी है, बस उसके साथ लड़ना नहीं but है. you have to fight with them. You say God I will pray for them. उसके लिए खुदा मैं उसके प्रार्थना God करूंगा. may bless him. खुदा तुझे आशीष दे. Don't curse him. उसको कर्ज नहीं करना. बाइबल कहती है जब आप bless करते हैं, वचन कहता है when you bless, अच्छे फ्रूट पैदा होते हैं. you will have a good fruit. जब अच्छे फ्रूट पैदा होता है, And when a good fruit एक is born, अच्छे रिजल्ट को लेके आता you will है. see a good जब result. अच्छा रिजल्ट होता है, And when you see good एक अच्छी results, टेस्टमनी होती है. there's a new जब testimony. एक अच्छी टेस्टमनी होती है, And when there's a new एक नई testimony, जिंदगी बच जाती है. so a new life is जब made अच्छी नई saved. जिंदगी बच जाती है, And when a new life is परमेश्वर saved, के दूत वहां पर खुशी करते हैं. so that the angels of God rejoice. जब वहां पे वो खुशी होती है तो आपका जीवन खुशी से भर जाता And है. when there is rejoice, your life will be filled by joy. A good tree cannot bring forth evil fruit, जो अच्छा पेड़ है वो बुरे फल नहीं ला neither सकता. can a corrupt tree bring forth good fruit. और जो बुरा पेड़ है वो अच्छे फल नहीं ला सकता. Every tree bring not forth good fruit is hewn down. वो काटा जाता जो भी है कोई ट्री है वो काटा जाएगा and cast into the fire. और वो आग में डाल दिया जाएगा. Wherefore by their fruits ye shall know them. कि आप उनके फलों के द्वारा उन्हें जान पाएंगे. जो वृक्ष फल नहीं देता उसे काटा जाता है, उसे आग में फेंका जाता है. So the fruit which does not bear fruits will be cut and thrown into fire. Make sure that you have to be the part of that tree जो कि fruit दे सके. तो आप ध्यान रखेंगे आप उस पेड़ का हिस्सा बने जो फल लाए. जब आप किसी को ब्लेस करते तो एक बार याद रखिए आपके अंदर अच्छे फ्रूट पैदा हो रहे हैं. So when you're blessing somebody, you understand that you are having good fruits in आप you. गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके अच्छे फ्रूट पैदा हो रहे So हैं. you're controlling your anger, you having आप वर्ल्ड fruits. का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, आप फ्रूट को पैदा कर रहे हैं. You're not part of the world, you're having fruits. अपने घर को आप बरकरार रख रहे हैं, आप फ्रूट को पैदा कर रहे हैं. So if you have handling your home, you are having fruits. आपका फल हमेशा एक अच्छी रीति को ही पैदा करेगा. प्रभु का वायदा है वहां पर जहां पर अच्छा फ्रूट होता है वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं होती So है. wherever there is a good fruit, there will not be any lack there. That's why in 2 Corinthians 2:11 में ऐसा लिखा है. 2 Corinthians 2:11 में Lest Satan should get an advantage for us. कि शैतान को एडवांटेज मिले. Lest Satan should get an advantage for we are not ignorant of his कि devices. शैतान को एडवांटेज ना देखना पड़े कि हम उसके जो वेपन्स है उसके बारे में नहीं जानते. कि इसको ना ऐसे कि हम अनजान है भाई तुझसे. So we as if like we don't know it. है ना, जैसे देखिए ना कि प्रभु हमें तो इसके बारे में पता नहीं है. Don't be just like so But strange. you that we don't know rather it. have to come up with a certain ways. But आपको एक दूसरे वेग से आना है. I am a God and I am a child of God. I know your ideas. कि मैं खुदा का बच्चा हूं और मैं तेरे आइडियाज को जानता आपके हूं. घर में आकर कोई गलत बात बोलता है तो आपको बोलकर मुझे पता है तुम्हारे आइडियाज क्या हैं. If somebody talks bad in your house, you should know I know what's your plan And is. you have to say I will pray and it will be okay. और आपको दुआ करनी है कि मैं दुआ करूंगा. And I तो will सबसे bless that person, it will be okay. और जब मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा वो And I सही हो will जाएगा. bless my family and my family will be और okay. मैं अपनी फैमिली को ब्लेस करूंगा वो ओके हो जाएगा. प्रभु के वचन में लिखा है and it will happen on that वचन time. कहता है कि it will happen what you say. Let's see the fourth point, say think on the good things. आपको चौथा कहता है कि आप अच्छी चीजें के बारे में सोचें. Think on the good things. अच्छी चीजों के बारे में जो सोचें. अच्छा फ्रूट बोता है, अच्छा जो फल पैदा करता है वो अच्छी बातों में सोचता है. So people who think good, they bear good fruits. Rather you जब जितनी भी आप चाहे आप जितनी मुश्किल परिस्थिति में हो तब भी आप प्रभु का धन्यवाद कर सके, ये गुड थिंग है. So no matter how troubled you are, if you're worshiping and praising God, that's a good thing. Ephesians 4:32 में ऐसा लिखा है. Ephesians की किताब 4:32. Remembering how much we appreciate love and याद रखें हम understanding कितना अप्रिशिएट करते हैं प्यार को और अंडरस्टैंडिंग. help us avoid being critical of others. हमें अंडरस्टैंडिंग है कि हम दूसरों को कैसे हैंडल करना है And be kind one to another, और दूसरों के साथ एक अच्छी रीति में है, tender hearted, एक अच्छे दिल से forgiving one another, दूसरों को माफ even करना. as God for Christ's sake hath forgiven you. जिस तरह से खुदा ने यीशु मसीह के द्वारा हमें माफ करा. वो प्यार को अपने जीवन में हमेशा याद रखा करें. So always remember that love for God. Appreciate करें God. And you appreciate that. Really God, you really did a marvelous thing कि for खुदावंद me. तूने मेरे लिए बहुत बड़ा काम करा तूने है. मेरे लिए मेरे जीवन को बचा के कि मेरे को एक नया जीवन दे दिया है. That you saved me and you gave me a new life. Rejoice, सुबह उठे कहेंगे thank you God, you given a good life. तो उसको सुबह उठ के कहिए खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ जिंदगी के लिए. आप बोलेंगे my life is good.
when you say that my life is good, शैतान शर्मिंदा होगा। devil be ashamed. अगर आपको शैतान ने मायूस किया हुआ है, And if devil have ashamed you, सुबह उठ के sorrow songs लगा दिए and if आपने, you're waking up and listening to sorrow song, very good, very and good, he is clapping that वो you कह रहा है, वो बोल रहा है, प्रभु जी देखो अपने लोग मैंने इनको क्या बना दिया है, and he says, God, let's see what I made to a people. है ना, ये आपने इनको कह रहे थे ये सुपर हीरो मैंने देवदास बनाया हुआ है, And you told them superheroes, I made them and we devas. consider we are the superhero of Christ. Huh? We are superhero of We Christ, are superhero of Christ. and for his kingdom, उसके kingdom के लिए. तो हमें ये मानना है कि हम उसके सुपर हीरो ही नहीं। So we have to understand and believe that we are the superheroes only. शैतान को बोले मुझे पता है तेरी चालाकी क्या है, And then tell devil, I know what your trap तू मेरे is. दिल में ये क्यों डाल रहा है, I know why you putting तू मेरे that in my दिमाग में mind. क्यों डाल रहा I know है, why you putting it in my मैं mind. तेरी चालाकियों को कामयाब नहीं होने I दूंगा। won't let your work go in me. Still I will rejoice and I will say I'll trust in my God, and still I say I praise and worship the living फिर God. भी मैं खड़ा होऊंगा, मैं rejoice करूंगा उस खुदा के अंदर. Still I will say God I love you, मैं खुदा को बोलूंगा मैं तुझसे प्यार करता you हूँ. are my God, तू मेरा hallelujah। खुदा है. बाइबल से जब आप ये बातें बोलोगे वचन कहता है when you talk about this, शैतान वहां से फ्ली हो जाएगा। devil चला जाएगा वहां से. प्रभु के वचन में लिखा है शैतान को शर्मिंदा करने का इससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। That the word of God says there is no other greater weapon to make him ashamed. Rejoice, कि खुश होना. खुश रहें और आप कहें कि प्रभु जी मैं तेरे बीच में हमेशा बना So रहूंगा। rejoice, खुदा मैं तेरे बीच में. I will always be in the house of God. प्रोवर्ब्स 16:20 में ऐसा लिखा है, कहो तो 16:20. Whose trust in the Lord, happy is he। जिसका भरोसा खुदा में है वो खुश है. जिसका भरोसा परमेश्वर में है वो खुश है। Whoever trust is in God is happy. जिसका भरोसा परमेश्वर में है। Whose trust is in If you are God. in Christ, आपका भरोसा परमेश्वर में रहना है। If you are in God, you have to be. I've seen many believers परमेश्वर में ट्रस्ट रखते हैं पर भी मायूस रहते हैं। I've seen मैंने बहुत देखे हैं जो खुदा पे भरोसा रखते हैं but they are sad. नाम परमेश्वर की वर्शिप करेंगे They don't worship God, पर काम शैतान का पूरा कर रहे हैं। but they're actually doing what devil wants them to do. शैतान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उसकी बातों को पूरा कर रहे हो कहते जाओ जी चर्च जितना मर्जी जाओ। So if you are fulfilling what devil wants you to do, he doesn't mind you to go to church. आप जितनी मर्जी बाइबल स्टडी करें, कॉलेज चले जाएं, बाइबल कॉलेज जाएं, करो No matter wherever you go, काम तो आपने मेरा ही करना है, but still you got to follow me. मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी। That I don't care about what you बाइबल do. कहती है जब आप चर्च से बाहर निकलते हैं वचन कहता है when you move out of the एक church, हथियार लेके निकलते हैं, we have a weapon with शैतान को us शर्मिंदा किया करें उस वक्त। so that you can insult him. I'm no more the child of Satan, I'm the child of God। कि मैं तेरा बच्चा नहीं, मैं खुदा का बच्चा हूँ. मैं परमेश्वर तेरी औलाद हूँ। I'm the child of God. अब जब उसकी अब अगर मायूस हो जाए कि लड़ाई झगड़े में पड़ जाए और उस क्लेश का हिस्सा बन जाएंगे तो शैतान वहां पे खुश होगा, वो कहेगा still you are my child। So if you are angry, if you're fighting, he'll be happy and he says तू मेरा ही बच्चा है. चाहे सिचुएशन जैसी मर्जी हो, you have to rejoice and say God I'm happy because my trust is in you। So no matter situation is, tell God मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा भरोसा तेरे पे है. Let's the last point say take a positive stand against the devil and his negativeness। उसका बाइबल कहती है कि पांचवा पॉइंट कि पॉजिटिव स्टैंड ले अगेंस्ट द डेविल और उसकी नेगेटिव्स के खिलाफ. Take a positive stand against the devil and negativeness। एक पॉजिटिव स्टैंड ले आप और डेविल को एक नेगेटिव स्टैंड दे. पॉजिटिव जो सा आपका स्टैंड है वो परमेश्वर का हथियार है। So the positive stand is the weapon of God. उसकी नेगेटिव सोच को मार दें आप, To kill his negative thoughts. उसकी जितनी बातें उसको खत्म कर दें आप। It will kill whatever he's saying. कोई भी हिस्सा आपके जीवन में रह ना जाए किसे वो कहे कि अभी भी तू मेरा है। There shouldn't be anything in your life wherein you give an option or opportunity to save your mind. अपने आप को वही परखें, अपने आप को कहें कि अभी भी कोई हिस्सा मेरा शैतान का नहीं होना चाहिए। So you just test yourself, see yourself that you should not have anything of devil. कि आपको ये कहना कि प्रभु जी मेरी बॉडी, मेरी जीवन, मेरी सोच, मेरा विचार, मेरी रूह, मेरी आत्मा, मेरे ख्यालात, मेरे विचार प्रभु सिर्फ तेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी चीज शैतान की इस जीवन में अब नहीं है। So you test